affairs, but their relevance can also be found in, let's say, international relations, in current affairs, and other subjects are including the English essay that is pertinently relevant to your overall CSS preparation. So aim is basically to sensitize you as to how the national security apparatus has been working, how different set of challenges have actually evolved over the course of time, and what are certain ways we can actually mitigate those challenges. Since we have extensively talked about the national security landscape, the challenges it faces, and the way forward we can actually look for, it's high time we discuss another facet of our national security. And in our today's debate, we will particularly be talking about the hybrid warfare in Pakistan. What is hybrid warfare? How has this idea of warfare has been evolved over the course of time? What are various ways states have been actually, let's say, resorting to the idea of hybrid warfare, and what consequences has Pakistan been bearing for the onslaught of the hybrid warfare on the national security landscape? Let's see what is in our today's debate. So today's debate entirely focuses on the hybrid warfare idea. So the topic I phrased in this manner is Pakistan in the eye of hybrid warfare, how to face the storm. I'm your regular mentor for this particular session. Let's see what is the outline for this particular topic. As has been repeatedly, I've been repeatedly saying that the outline making is way more important when it comes to, let's say, understanding of a particular topic, or let's say establishing a proper debate related to that particular topic. So outline में हम आज ये चीजें discuss करेंगे कि what is a introduction of this topic, then we will define. आपने एक focus एक बात के ऊपर जरूर किया होगा अभी तक कि we aim to define every topic. We tend to define every concept, because without actually defining something in a proper manner, I personally don't think there would be anything meaningful in the overall discussion. Tools and techniques of the hybrid warfare. This has exactly been the same question that was asked in past papers. Then we will critically analyze that, way forward kya hai aur conclusion debate ka kya hai. All these will be discussed in this particular state of things. अब जब हम हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही मॉडर्न है, ये कोई इतनी पुरानी नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल डिस्कोर्स में बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर की डिबेट 2018 ऑनवर्ड शुरू होती है, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा in his doctrine, Bajwa doctrine, was quoted saying that our enemies know that they cannot beat us fair and square, and have thus subjected us to a cruel, evil, and a protracted hybrid warfare. उससे पहले हाइब्रिड वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था. That was basically referring to how Indian designs are basically working against Pakistan. लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर की हमें जो ओवरऑल प्रैक्टिस है वो कोई आज की नजर नहीं आती. द डिस्कोर्स कैन बी विटनेस्ड इन, लेट्स से, सन त्जु's आर्ट ऑफ वॉर बुक, जिसमें वो कहता है कि जिसमें वो बेसिकली कहता है कि टू फाइट एंड कॉन्कर इन ऑल बैटल्स इज नॉट सुप्रीम एक्सीलेंस. सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट इन ब्रेकिंग वंस रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग. ये प्रॉपर एक चाइनीज आर्ट ऑफ फाइटिंग वॉरफेयर है, जो कि हमें रिफ्लेक्ट करा रहा है इस पॉइंट की तरफ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जंगें लड़ें और फिर फतूहात हासिल करें उन तमाम तर जंगों में. एक रियासत को, एंटिटी को, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि आप बगैर जंग लड़े दुश्मन को जो है वो सिफाए हस्ती से मिटा लें. एक और इसकी मैनिफेस्टेशन अगर हम देखें तो हमें नजर आती है, किताब है एक जनरल है क्लासविट्स, उसकी किताब थी ऑन वॉर. उसमें वो कहता है कि वॉर नेवर अचीव्स इट्स एब्सोल्यूट, एंड वॉर नेवर अचीव्स इट्स एब्सोल्यूट बिकॉज वॉर इज नेवर एन आइसोलेटेड एक्ट. War doesn't consist of a single shot blow, and in war, the result is never final.
सो ये तीन चार कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि पहले तो एक हाइब्रिड वॉरफेयर के डिस्कोर्स के बारे में हमें बता रहे हैं। पर्टिकुलरली आखिरी बात हमें क्लाउज़विट्ज़ की यही बता रही है कि वार अपने आप में कोई एक एक्ट नहीं है, ये बेसिकली मल्टीपल एक्ट्स का कॉम्बिनेशन है और ये कांस्टेंट होते हैं, ये फिक्स नहीं है कि आज शुरू हुए और थोड़ी देर बाद खत्म हुए। ये अजल से शुरू हैं और ये अजल तक जारी रहेंगे। जब तक ह्यूमन नेचर मौजूद है, जब तक इंसान मौजूद है, द डिस्कोर्स ऑफ वॉर वुड कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू न्यू वेज पॉसिबल। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखने से पहले हम ब्रॉडली अगर देखें हाइब्रिड वॉरफेयर को, तो दिस इज अ लिटिल इंट्रोडक्शन दैट यू नीड टू टेक इनटू द अकाउंट। और ये जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि the canvas of the modern conflicts is diverse, with many interlinked diverse dimensions to include conventional conflicts। ये अपने तमाम तरह जब भी मैं फीचर्स बोल रहा हूँ याद कर लेने, क्योंकि these are essentially the characteristics of modern hybrid warfares। So to include conventional conflicts, including nuclear adversaries, cyber, space, economic, use of terrorist insurgents, or the religious extremism. So the merging of the or the blurring of the conflicts and the war forms is gradually transforming into a hybrid nature, wherein adversaries are like to maximize the war fighting capability at their disposal to include asymmetric or irregular tactics। ये तमाम तर वो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहा है जिसमें मॉडर्न वॉर जो हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट में है वो बेसिकली लड़ी जाती है। पहले वॉर का जो करेक्टर था दैट एसेंशियली यूज्ड टू बी पॉलिटिकल और हाईली मिलिट्री और सब्जेक्टेड टू सम अदर फ्रंट्स लाइक इकोनॉमिक। लेकिन आज जो वॉर का करेक्टर है दैट इज टू वाइडर टू लेट्स से लिमिट। अब हम पहले समझेंगे कि वॉर है क्या, फिर हम पढ़ेंगे लेट्स से वॉर की कुछ फंडामेंटल टाइप्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो वॉर्स की हम जनरेशन देखते हैं कि जी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हम लड़ रहे हैं, तो ये फिर फर्स्ट जनरेशन क्या थी, ये सेकंड जनरेशन क्या है और हम फिर फिफ्थ जनरेशन तक कैसे पहुंचे हैं, और हर एक जनरेशन को हम दूसरी जनरेशन से बेसिकली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। फिर ही जाके हम हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखें मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्विकली वॉर हाइब्रिड वॉरफेयर और उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़ाई जाएं, वो तो वैसे पहली स्लाइड में ही आपको पता चल गई होगी। असल है कि उस आइडिया के बारे में जो ब्रॉडर डिस्कोर्स है वो जनरेट करना। मैं हमेशा सीएसएस एस्पायरेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप जब तक ब्रॉडर डिस्कोर्स से वाकफ नहीं है ना, आप उस पूरे नॉलेज बेस को रेलेवेंट ही नहीं बना सकते। मसलन यही आइडिया आपके ऐसे में कैसा रेलेवेंट हो सकता है, यही आइडियाज आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए कैसा रेलेवेंट है, आईआर में कैसा रेलेवेंट है, इवन यूएस हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसा रेलेवेंट है। So it's very much important, and it's very important that you emphasize learning the discourse rather than just the practicality of that particular idea or debate. So war की जब भी हम बात करते हैं तो war is basically a state of armed conflict, mostly between two states, but not necessarily between two states. It can be state to state, it can be state to non-state actor, and it can be from non-state actor to non-state actor. अब देखें स्टेट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट स्टेट टू स्टेट की मिसाल है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, जैसे चीन और इंडिया के दरमियान एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ है। इट कैन बी फ्रॉम स्टेट एक्टर टू नॉन स्टेट एक्टर। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर particularly against Tehreek-e-Taliban Pakistan. For example, America's war on terror particularly manifested in the form of attacks against Al-Qaeda and the affiliated militants. तो यहाँ पे जो वॉर का कैरेक्टर है दैट इज प्राइमरली कि भाई स्टेट की किसी नॉन स्टेट एक्टर के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई से रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड देन देयर इज अ थर्ड ईयर दैट इज अ नॉन स्टेट एक्टर फाइट्स अनदर नॉन स्टेट एक्टर। जैसे एक वॉर में स्ट्रैटेजी होती है ना, एक सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी होती है टू सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ स्ट्रैटेजी, कि जी हम क्यों लड़ें, हम क्यों अपने हाथ कंधे करें, बिकॉज वी वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑफ ऑल दोज एक्शंस। लेट्स जैसे होता है कि जी गैंग वॉरफेयर में पुलिस में ये होता है कि बजाय के इन सर्टेन केसेस जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो खुद लड़ें, वो देखते हैं कि इफ गैंग कैन बी यूज्ड अगेंस्ट ईच अदर
one gang can be used against the other. So that is basically going to benefit the state as a whole and the institutions who are working for ensuring the law and order, peace and stability. तो ये बेसिक वो है, नॉन स्टेट एक्टर टू नॉन स्टेट एक्टर भी जंगें हो सकती हैं, जैसे टीटीपी और अलकायदा के दरमियान जंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल टीटीपी और दाइश के दरमियान जंग हो, जैसे अलकायदा और जो है वो दाइश के दरमियान जंग हो. सो यू कैन कोट एज मेनी एज एग्जांपल्स एज यू कैन. फिर वॉर की कुछ टाइप्स हैं, जैसे टोटल वॉर है, वो वॉर होती है जिसमें तमाम कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटीज आर इन्वॉल्व. फिर एक होती है लिमिटेड वॉर. अब टोटल वॉर की मिसाल ले लें तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है. फिर हम लिमिटेड वॉर की मिसाल ले लें तो ये वो वॉर होती है जिसमें a fraction of state and society is mobilized in a particular paradigm to let's say wage that very war. और उसके लिए एक एरिया जो है वो ग्राउंड जो है वो फिक्स किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है कि we are looking for sorting out a strategic space to wage a war against the state of Pakistan. कश्मीर में हम कर लें, बहावलपुर में हम कर लें, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के थ्रू कर लें. So that would be known as a limited warfare. It's very true that a limited war can no longer stay limited. It can spiral into a broader conflict leading to a total war or potentially the nuclear war. But then the idea of limited war does exist, as has been evident in the Pulwama crisis. There was escalation between two countries at the, let's say, Air Force level, and then situation took a quantum leap for the worse. एक और है सिविल वॉर. ये कॉमन टर्म्स हैं जो कि यूज होती हैं. सिविल वॉर बेसिकली वो वॉर है जिसमें एक गवर्नमेंट और उसकी पॉपुलेशन के दरमियान लड़ाई हो. जैसे सीरियन सिविल वॉर है तो सीरियन पीपल आर बेसिकली फाइटिंग to drive Bashar al-Assad out of power. For example, there's a war in Yemen. So Houthi rebels, who are particularly the citizens of the Yemen, are trying to drive Saudi-backed Yemeni government out of power. एक होती है गुरिल्ला वॉरफेयर. ये एक एमसीक्यू भी पूछा गया है, if I can recall in CSS के, गुरिल्ला किस लैंग्वेज का वर्ड है? गुरिल्ला बेसिकली स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है. उसका मकसद ये है कि भैया आपने हाइड एंड सीक मैनर में कैसे जो है वो जंग लड़नी है, कैमोफ्लेज मैनर में बेसिकली प्रोलॉन्ग वॉर कैसे लड़नी है. तो ये बेसिक कुछ टाइप्स हैं वॉर की. अब हम देखते हैं कि आइडिया ऑफ वॉर की एवोल्यूशन कैसे हुई. फॉर एग्जांपल आप अगर कुछ हॉलीवुड की मूवीज देखें, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा वैसे की तैयारी के दौरान ना मूवीज देखा करें. ये भी एक इनफॉर्मल वे ऑफ लर्निंग होता है, दैट वुड इवेंचुअली हेल्प यू पीपल अ लॉट. तो एवोल्यूशन, तो हम बात कर रहे थे कि आप अगर देखें तो रोमन एम्पायर के ऊपर जो सीजन्स बने हुए हैं, या एक ओटोमन एम्पायर के ऊपर एक सीजन बना हुआ है, तो आप देखें कि वॉर का जो आइडिया है टेक्नोलॉजी और प्लानिंग के हवाले से बहुत ही इवॉल्व हुआ है. इफ यू कंपेयर इट टू द मॉडर्न टाइम्स. इसको जो है वो विलियम एस लिंड, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है, ऑफिशियल है, उसने कन्वर्ट किया इनटू वेरियस जनरेशंस ऑफ द वॉरफेयर, जिसमें भी उसने डिफाइन किया कि पहली जनरेशन ऑफ वॉरफेयर वो वॉरफेयर है दैट एसेंशियली वाज द एरा ऑफ स्मूथ बोर मस्कीट्स, टैक्टिक्स ऑफ लाइन एंड कॉलम. और ये बेसिकली जो है वो डेवलप किए गए थे जैसे जैसे वक्त के साथ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आती गई थी. फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखें बाहुबली मूवी, आप सब लोगों ने देखी होगी. So what is different? What is the different set of, let's say, military techniques employed by his army and his opponents? Same goes with the, let's say, Persians and Greeks, or same goes with the Spartans and the Greek and the Persians. 300 movie आप सब लोगों ने देखी होगी कि over the course of time लोग जो है वो man to man combat हुआ करता था, and the physical force was basically the hallmark of the total warfare. अब उसके बाद जब पहले शख्स ने इजाद की ये जो है वो ढाल तलवार इजाद हो गई, तो उसके बाद ये जो फिजिकल फोर्स था मैनहुड का, उसकी रेलेवेंसी खत्म हो गई. अब तलवार के बाद जब ढाल वजूद में आ गई, तो उसके बाद लोगों ने कहा कि अब तो तलवार की कोई रेलेवेंस है ही नहीं, क्योंकि अब तो डेटरेंस आ चुकी है. सो इस तरीके से आप देखें कि आइडिया ऑफ वॉरफेयर इवॉल्व हुआ है. ये सिर्फ उस दौर में नहीं है, आजकल के दौर में भी है. जैसे फॉर एग्जांपल टैंक इजाद हुआ तो ख्याल किया गया अब तो ये जो नियर वॉर है वो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन फिर एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं वो डेवलप किए गए तो टैंक की रेलेवेंस खत्म हो गई. सो दिस होल थिंग इज बेसिकली इवॉल्विंग.
Nonetheless, we have, let's say, evolution in the firepower, rigid drill that was necessary to generate that very high rate of fire. और ये सारा कुछ जो जनरेशन ऑफ वॉरफेयर का तस्वर है, दैट वाज इन रिस्पांस टू द सोशल कंडीशंस एंड द आइडियाज। और ये आप रिलेट कर सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो जंगें थी या उससे पहले, यानी कि 17th-18th सेंचुरी या वेस्टफैलियन सिस्टम की शुरुआत और उससे पहले जितनी भी जंगें थी, ये फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में कॉन्स्टिट्यूट होती है। फिर इसमें एक थोड़ी सी एवोल्यूशन होती है, जैसे मैंने बात की कि स्मूथ बोर मस्कीट्स की इसमें एवोल्यूशन होती है। अब होता क्या है कि 14th और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड चाइनीज गन पाउडर वजूद में आता है, एंड दैट बेसिकली चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ द वॉरफेयर। So the replacement of the smooth bore by the rifled musket actually change the character of the overall, let's say, war fighting and the outcome of the battlefield. उसके बाद फिर शुरू होती है सेकंड जनरेशन में आप ये नहीं कह सकते प्रीवियस जनरेशन के कोई तस्वुरात नहीं थे, वो बिल्कुल थे, लेकिन देयर वर अ फ्यू चेंजेस। फॉर एग्जांपल, इट वाज रिस्पांस टू द राइफल्ड मस्कीट। ये आप मेरी बेसिक हाइपोथेसिस याद कर लें जो तलवार और ढाल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि एक वेपन इजाद किया जाता है एंड इन रिस्पांस टू दैट वेपन अ डेटरेंट वेपन इज बेसिकली क्रिएटेड। तो फिर अगेन दिस लीड्स टू रीथिंकिंग ऑफ न्यू वेपन दैट कैन एक्चुअली काउंटर दैट पर्टिकुलर वेपन। जैसे सिक्योरिटी डायलेमा बेसिकली मैं सही कह रहा है ना, एक स्टेट ने वेपन डेवलप कर लिया, फिर दूसरी ने डेटर कर लिया। अब एक के लिए सिक्योरिटी थी, दूसरे के लिए इनसिक्योरिटी थी, उसने एक नए सिक्योरिटी लेयर क्रिएट कर लिया। अब इस स्टेट का सिक्योरिटी लेयर स्टेट ए के लिए इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है। दैट इज लीडिंग टू द आर्म्स रेस एंड द मॉडर्नाइजेशन इन दैट वेरी ओवरऑल फायर पावर। So now the tactics were based on the fire and movement, and they remained essentially linear. The defense still attempted to prevent all penetrations, and in the attack, a laterally dispersed line advanced by rushes and all smaller groups. ये थोड़ी सी modernization इसमें की गई। और एक प्रिंसिपल चेंज हमें फर्स्ट वॉर से नजर आती है, क्योंकि अब एक रिलायंस हो गई ऑन हैवी रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट फायर। सेकेंड जनरेशन को हम अगर समअप करना चाहें, एक मिलिट्री मैक्सिम है फ्रेंच मिलिट्री में कि द आर्टिलरी कॉन्कर्स, द इन्फेंट्री ऑक्यूपाइज। अब आर्टिलरी, इन्फेंट्री और उसके बाद एक नई कोर भी अभी एग्जिस्ट करती है, दैट इज द आर्मर्ड कोर, दैट इज बेसिकली द क्वीन ऑफ होल मिलिट्री। अब इसमें वक्त के साथ एयरफोर्स का एलिमेंट आ गया, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी का एलिमेंट आ गया है, स्पेस वॉरफेयर शुरू हो गई है, मैरीटाइम वॉरफेयर शुरू हो गई है। तो बहरहाल इनिशियल जो आइडियाज हैं आप देखें कि यहां से शुरू होते हैं। बट देन अगेन आइडिया मैस्ड फायर पावर रिप्लेस्ड मैस्ड मैन पावर। पहले होते थे कि लोग ज्यादा, अब ये था कि जी फायर पावर ज्यादा हो। लेकिन इन तमाम तर चीजों में जो टेक्नोलॉजी थी दैट वाज द ड्राइवर ऑफ चेंज, जो कि मेरी इनिशियल हाइपोथेसिस है। अब वो सेकंड जनरेशन के ऊपर भी हमें पूरी नजर आती है। उसके बाद हमें सेकंड जनरेशन की फॉर एग्जांपल मिसालें कहाँ से मिलती हैं? 18th सेंचुरी के ये जो शुरुआत है और एंड है, जो भी जंग लड़ी गई वो सेकंड जनरेशन और कुछ थर्ड जनरेशन वॉरफेयर कहलाती है। अब थर्ड जनरेशन फिर अगेन इट वाज डेवलप्ड इन रिस्पांस टू द बैटलफील्ड फायर पावर। पहली जनरेशन में क्या था कि मैन पावर ज्यादा हो, नंबर्स मैटर्ड। सेकंड में ये था कि यार नंबर कितने भी हो, लेकिन अगर फायर पावर ज्यादा है तो वी कैन डोमिनेट एनिमी एंड दैट्स इवेंचुअली रिक्वायर्ड। थर्ड जनरेशन में ये हुआ कि नहीं, अब बैटलफील्ड का जो काउंटर है वो हमने जो है वो क्रिएट करना होगा। सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर अगेन दोस आइडियाज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। तो अब फोकस ये होना शुरू हो गया कि अब एक ब्रॉडर इंडस्ट्रियल बेस डेवलप किया जाए जो कि पूरे की पूरी वॉर मशीन को रीडिजाइन करे। उसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है जो कि आज तक रेलेवेंट है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। पहले मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ करता था, पहले ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्रीज नहीं हुआ करती थी, पहले इस तरह से लाइन एंड कॉलम टैक्टिक्स की परमानेंट एक आर्मी नहीं होती थी। लेकिन जब से ये नेशन स्टेट सिस्टम इवॉल्व हुआ है तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम फिर इस तरह की जो चेंजेस हैं वो भी हमें जो है वो सामने आ रही हैं एंड दे आर पर्टिकुलरली रेलेवेंट। सो दिस वाज बेस्ड ऑन मैन्यूवर
particularly when we talk about third generation warfare, it was based on maneuver rather than attrition. There are two types of war, wars of attrition and wars of aggression. So पहले जब लीनियर टैक्टिक्स थी, अब फोकस हुआ नॉन लीनियर टैक्टिक्स के ऊपर। लीनियर क्या आते हैं कि उधर से भी 100 लोग खड़े हैं, इधर से भी 100 लोग खड़े हैं, सामने बंदूकें करके एक दूसरे को मार रहे हैं। दैट वाज समथिंग लीनियर। Non-linear ये कि you may find a space and attack your adversary, attack your enemy in the best possible manner and just survive another day to fight for your own country. So this whole attack relied on infiltration to bypass and collapse enemies' combat forces rather than seeking to close with and destroy them. अब पहले वॉर का मकसद था कि टोटली डिस्ट्रॉय करना एनिमी को। अब वॉर का मकसद ये हो गया कि भाई डिकैपेसिटेट करना एनिमी को। दैट वाज इवेंचुअली इन द वर्ल्ड वॉर 1 और पोटेंशियली द वर्ल्ड वॉर 2। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वॉर का फोकस अब थर्ड जनरेशन में ये भी होना शुरू हो गया कि पहले हमने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढनी है, यानी कि वो स्पेस ढूंढना है जहां से हम सिक्योर मैनर में एनिमी के ऊपर अटैक कर सकें और उसके बाद हम उस मुल्क में पेनिट्रेट कर सकें। आप देखें इस थर्ड जनरेशन को रिलेट कर सकते हैं कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के साथ कि इंडिया की कोशिश ये है कि पहले हम वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लें, यानी कि इंडिया वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लें जहां से पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स जो है वो करें। On the other hand, Pakistan का ये कि we would counter attack and we would defend rather than penetrate into Indian territory. So the idea of warfare is essentially the same, no matter how much generational differences we are witnessing. अब इसमें 19th और 20th सेंचुरी में हमने देखा है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत तेजी से आ गया। तो अब फोकस ये हो गया कि नहीं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी होगा, लेकिन हम साथ में स्पीड एंड स्टील्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे कि हम जितना जल्दी दुश्मन की टेरिटरी में एंटर हो जाए दैट विल बी ओके। तो आप अगर ये लास्ट लाइन इस स्लाइड की पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि द शिफ्ट वाज ब्लिट्जक्रिग, दैट वाज द जर्मन फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर। ब्लिट्जक्रिग का मतलब ये होता है कि स्पीडी पेनिट्रेशन इनटू एनिमीज टेरिटरी। यू कैन से दैट द इंडियन कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन इज बेसिकली मॉडर्न डे ब्लिट्जक्रिग डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि हम शैलो पेनिट्रेशंस करेंगे, फिर डीपर पेनिट्रेशंस होंगे एंड इवेंचुअली वी वुड ओवरपावर एनिमी एंड सो ऑन। थर्ड जनरेशन के बाद हम फिर फोर्थ जनरेशन की तरफ आते हैं। देखें अब आई होप के द इंटरेस्ट इज नाउ बीइंग डेवलप्ड इन क्लास के भाई ये बड़ी सीरियस बात है, ये आपको नहीं होगी पता, यू वुड सफर द मोस्ट, क्योंकि ये आप सारे के सारे जो आइडियाज हैं रोज अखबार में पढ़ते हैं कि वी आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, वी आर अंडर द स्पेल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, वी डोंट नो व्हाट दीज वॉर्स आर इन फर्स्ट प्लेस। तो हम कैसे उनको रिस्पॉन्ड कर सकेंगे? वी नीड टू बी गुड एट आइडियाज। और हाइब्रिड वॉरफेयर का एक सोल्यूशन हम आखिर में पढ़ेंगे, वो ये भी है कि अवेयरनेस हमें नहीं है। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम किसी से लड़ रहे हैं तो हम कैसे जो है उस चीज के खिलाफ जो अपनी लड़ाई है वो कारगर मैनर में कर सकेंगे। अब फोर्थ जनरेशन की हम अगर बात कर लें तो दैट्स परहैप्स द शॉर्टेस्ट एरा, और उसको हम कहते हैं बेसिकली कि दैट वाज द जनरेशन इन द ट्रांजिशनल नेचर, क्योंकि अब स्टेट्स भी एक्टिव थी और नॉन स्टेट एक्टर्स भी एक्टिव थे। आज वैसे हम नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर भी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वैसे, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स का आप ध्यान में रखें कि ये नहीं है कि ये मॉडर्न डे या 1945 के एनवायरनमेंट की बात की पैदावार है। उससे पहले भी ये जो है वो असैसन्स हुआ करते थे, असैसन्स क्रीड। आप सल्तनत उस्मानिया में देखें तो एक पूरी एक जो है वो एक टीम है असैसन्स की। आप एक मूवी है प्रिंस ऑफ पर्शिया, उसमें देखें तो जो बादशाह का वजीर होता है उसके पास एक असैसन्स होते हैं। जापान में जो है वो निंजा असैसन्स होते थे। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हुआ करते थे जिनको स्टेट्स मर्जी के मुताबिक ऑन करती थी या मर्जी के मुताबिक ऑन नहीं करती थी। तो मॉडर्न डे नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली ड्राइव देयर ओरिजिन्स फ्रॉम दोज वेरी एक्टर्स। खैर फोर्थ जनरेशन में अब स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया। पहले ये होता था कि एक नेशनल बेस हुआ करता था, अब एक नॉन नेशनल और एक ट्रांसनेशनल बेस जो है वो बनना शुरू हो गया। पहले जंग लोकलाइज्ड हुआ करती थी, अब जंग इंटरनेशनलाइज हो गई। पहले जंग एक खास कौमियत के ऊपर लड़ी जाती थी, अब जंग एक खास नजरिए के ऊपर लड़ी जाती थी, मजहबी नजरिया भी, सेकुलर नजरिया भी।
और ज्यादा से ज्यादा फोकस हुआ कि हम सिर्फ डायरेक्टली लोगों को मारने के ऊपर फोकस ना करें। वही संजू का जो आर्ट ऑफ वॉरफेयर, उसको सामने रखते हुए फोकस किया गया कि जब तक हम जंग साइकोलॉजिकल मैनर में नहीं जीत सकते, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो उसके लिए मैनिपुलेशन ऑफ द मीडिया के जो टूल्स हैं वो डेवलप किए गए। 1935 में जर्मन जो चांसलर था हिटलर, एडोल्फ हिटलर, उसका एक मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी रियासत हो उसमें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की जो जॉब है ना, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टफ है। या द पर्सन हु इज बेसिकली डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो उसका एक इंडिविजुअल था गोएबल्स। उसने बेसिकली ये जो प्रोपेगेंडा वर्ड है ये कॉइन किया कि हमें चाहिए कि हम जो यूरोप के बाकी ममालिक हैं उनके खिलाफ अपनी अवाम में पब्लिक ओपिनियन जनरेट करें, और उस ओपिनियन को जब हम मोबिलाइज करेंगे तभी हम उसे अपने दीगर जो स्ट्रेटेजिक एंड्स हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अब मैं उसकी एक मिसाल दूं आपको। चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर के ऊपर चंद जो जर्मन्स थे उनको चेक जो आर्मी थी उन्होंने उसने मार दिया। 15 से 20 लोग थे। गोएबल्स ने अपनी पूरी मीडिया की टीम ली, जाए वकुआ पर पहुंचा, और उसमें हर एक इवेंट को इस तरीके से फिल्म किया कि जैसे चेकोस्लोवाकिया पूरे यूरोप और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिला हुआ है, ताकि जर्मन जो कम्युनिटी है उसकी टोटल एनाहिलेशन हो। Now that generated an outrage in German public. How dare such republic actually thought of even annihilating German race? We are not supposed to be annihilated. And the German public demanded from Adolf Hitler to attack Czechoslovakia. अब देखें, एक इवेंट, आइसोलेटेड इवेंट, उसे मैग्नीफाई करके पेश किया गया और ये सिचुएशन आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक कोट है, अक्सर बरखा दत्त की कोटेशन है कि अर्नाब गोस्वामी एंड द किलिंग ऑफ वन कश्मीर इंसर्जेंट सिंपली मींस इंडो पाक क्राइसिस या इंडो पाक वॉर। आप देखें कि पुलवामा जैसा अटैक हुआ, we condemn it on as a state on all its forms and manifestations कि कोई भी अटैक जो कि लॉस ऑफ लाइफ के लिए जो है वो जिसमें इनोसेंट मारे जाएं वो कंडेमेबल है। लेकिन वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट अ टेररिस्ट अटैक एंड व्हाट इज द इंसर्जेंट अटैक। To me, this was the insurgency, the attack of insurgency, rather than a terrorist attack. क्योंकि जो terrorist attacks होते हैं, they are directed against innocents, not armed personnel. But this particular attack was directed against the, let's say, state personnel or the armed personnel. खैर, हम जो बात, मतलब मैं डेविएट नहीं करना चाहता डिस्कशन को, लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट कि अब उस इवेंट को इंडिया ने मोबिलाइज किया, सिलेक्टिवली उसकी रिपोर्टिंग की। 410 चैनल्स इवेंट के 10 मिनट बाद ये कह रहे हैं कि लुक, स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज वेज्ड एन इनविजिबल वॉर अगेंस्ट द इंडियन पब्लिक, और पूरी इंडिया में आउटरीच आ गई और एक नैरेटिव पैदा किया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान को पनिश किया जाए। दे यूज वर्ड पनिश, हालांकि उन्हें पता है कि फिर अभिनंदन ने बता दिया होगा कि हु वाज पनिश्ड एंड हाउ, by telling them how fantastic was the tea. But then my point is simple, that the use of media is essentially important to shape public opinion to achieve certain ends against a particular country. तो हमें ये बात नजर आती है कि मीडिया इज इम्पॉर्टेंट। अब पुलवामा क्राइसिस के बाद इंडियन मीडिया ने जब पोस्ट वॉर एनालिसिस की तो उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया had lost its narrative and Pakistan had a fuller control over the media narrative, primarily because of the uniformity of the narrative on behalf of, on part of Inter-Services Public Relations, ISPR. लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये इदारे क्यों होते हैं। अब तो पंजाब पुलिस में भी इस तरह के इदारा बन चुका है। वी मस्ट हैव अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, एक नैरेटिव है, चलें हम ज्यादा इसमें नहीं चले जाते बिकॉज दैट वुड बी टू लॉन्गर अ डिबेट। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अब ये जो थी फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, दैट वाज अ नॉन नेशनल, दैट वाज अ ट्रांसनेशनल, सो टू से, and that has roots in ideology, a religion, in any secular outlook. That was highly sophisticated psychological warfare, essentially fought through manipulation of the media. उसके बाद ये जो है वो इसमें
ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो है वो तब्दीलियां आती गई, लेकिन अब अगर ये एलिमेंट्स थे तो उसमें अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड बिकेम वेरी मच डोमिनेंट. A fourth generation warfare uses all available networks related to political, economic, social, and military to convince enemies, political decision makers that their strategic goals are neither unachievable or too costly for the perceived benefit, and it is an evolved form of insurgency. इसको जब इस तरीके से फिर बढ़ाया जा रहा है, तो modern insurgencies can be quantified into four generation warfare. Now come to the next generation. लेकिन next generation से पहले में ये establish करना होगा कि what are the reasons behind this transition to next generation. कैसे हम अगली जनरेशन की तरफ जाते हैं और क्यों, क्या अवामिल होते हैं जो कि हमें इसकी तरफ लेके जाते हैं. For example, today the event suggests that there are a number of ongoing major developments in fourth generation warfare, जो कि हमें फिर fifth generation warfare की तरफ लेके जा रहे हैं. वो क्या elements हैं? There is a strategic shift. Objectives are changing over the course of time. Second, there is an organizational shift. कि पहले जो डिसीजन मेकिंग थी वो सारी हेडक्वार्टर्स हुआ करती थी, अब डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट होती है फ्रॉम एनी नॉन स्टेट एक्टर एज वेल. एंड देयर इज द शिफ्ट इन द टाइप ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. पहले सिर्फ पार्टिसिपेंट्स होते थे उस मुल्क की मिलिट्री, दोनों ममालिक की मिलिट्री, अब पब्लिक के ऊपर ज्यादा फोकस है. अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा डिटेल मैनर में अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में क्या चीजें आ जाती हैं. Insurgents campaigns have shifted from military campaigns supported by information operations to strategic communications campaigns supported by guerrillas and terrorist operations. आप देखें कि अगर let's say किसी भी जो है वो terrorist organization का कोई attack होता है, तो on one hand they let's say carry out their attack through military means. Like at the same time, they try to play victim, that we are the victims of the system and we are basically trying a voice to be heard, no matter how their campaign has been shared. उसकी वजह से होता क्या है कि they get a popular base. People come over the streets and support their cause. किसी ज़माने में narrative हुआ करता था, गाने बन रहे होते थे कि my dear Osama bin Laden, my dear Osama bin Laden. अंग्रेजी में एक आया था, if you ever get a time then listen it, and then you will be surprised at how much public sympathy used to exist for those particular organization. Case of TTP is no different than this. Case of Daesh is no different than this. So that is basically the strategic shift we have been talking about. Then there is an organizational shift. जैसे हमने थोड़ी देर पहले वॉर्स की मिसाल ली, we established the fact कि civil wars new reality हमें नजर आती है वॉरफेयर में. So the emergence of civil war is a part of insurgencies based on the major organizational shift that has occurred since Mao formulated this concept. चीन में मिलियन मार्च के बाद जो है वो 1949 45 to 49 जो वॉरफेयर हुई, that was a civil war जिसके नतीजे में फिर modern day People's Republic of China with communist ideals at its core came into being. इससे ऑर्गेनाइजेशनल शिफ्ट से नजर बेसिकली में क्या आ रहा है कि वॉर इज कंटिन्यूअस, और जो वॉर है दैट इज नो लॉन्गर लेट्स से लिमिटेड टू वन सेट ऑफ पीपल, वन ग्रुप ऑफ पीपल, बट दैट इज नाउ डिसेंट्रलाइज्ड. वॉर इज एवरीवेयर एंड देयर आर चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वेजिंग वॉर एवरीवेयर दे वांट. उसकी हमें फिर मिसालें मिलती हैं, जैसे चाइनीज एंड वियतनामीज इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने फिर अपनी जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटीज को, अपनी बिजनेस और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कैपिटलाइज किया एंड इवेंचुअली अचीव्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स. So insurgencies have been working in coalitions with each other. ये इंसर्जेंसी सिर्फ ये नहीं होता कि किसी एक मुल्क में एक जगह पे ऑपरेट करें. नो, दे वर्क टुगेदर, दे वर्क इन वेरियस वेज एंड इवेंचुअली सपोर्ट ईच अदर. Shift in participants even within a single country, the highly diverse armed groups that make up a modern insurgency have widely differing motivations. These motivations can be reactionary, opportunistic, and ideological as well.
फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ थ्रेड फ्रॉम BLA, मुख्तलिफ 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं बलूचिस्तान में जो कि पाकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस हैं और पॉपुलेशन है बलूचिस्तान में, उसके खिलाफ ये जो अपने जो जंगी कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं। तो अब 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ब्रास, BRAS, बलोच राजौरी अजौरी संगठन, जैसे बेसिकली हम कहते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक, इस तरह के से जो है उसकी बलोची में मीनिंग बनती है। लेकिन ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर नॉट लेट्स से मोटिवेटेड बाय सिंगल फैक्टर अलोन। कोई ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है जैसे जो है वो बलूच रिपब्लिक आर्मी है, दैट्स एज अ डिफरेंट कंटूर, बलूच लिबरेशन आर्मी है, दैट्स अ डिफरेंट कंटूर। सो कुछ रिएक्शनरी होती हैं, कुछ मौका ढूंढ के फिर इवॉल्व होती हैं, कुछ फिर फॉरेन सपोर्ट के ऊपर इवॉल्व होती हैं, कुछ को डोमेस्टिक सपोर्ट भी हासिल होती है और इस तरीके से इवॉल्व होती हैं। सो इन फैक्टर्स ने बेसिकली एक ट्रांजिशन की है फ्रॉम फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर टू व्हाट इज कॉल्ड एज द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को अगर हम कंक्लूड करें तो दैट्स रिजल्ट ऑफ 4 बेसिक फैक्टर्स। नंबर 1, न्यू डिमांड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 2, चेंजिंग नेचर ऑफ एडवर्सरी। And number 3, changing nature of objectives. Last but not the least, changing nature of force. New domains of conflict क्या है? पहले conflict was primarily on the military front. Now the conflict is on media, on psychology, on economy, on shaping the narrative. Changing nature of adversaries. पहले सिर्फ adversaries military personnel हुआ करते थे. Now the adversaries are multiple. Name anyone and everyone is the adversary. चेंजिंग नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पहले वॉर का मकसद ये होता था कि बस आज जज्बा बुलवतनी से जंग लड़ो या जज्बा पर्टिकुलर मकसद से जंग लड़ो, चाहे अपनी जान चली जाए, दैट विल बी ओके। लेकिन अब मकसद ये है कि जस्ट मेक एन इम्पैक्ट, लिव एन अदर डे एंड मेक एन अदर इम्पैक्ट एंड दिस टाइम द बिगर वन। चेंजिंग नेचर ऑफ द फोर्स। पहले ये होती थी को ऑर्गेनाइजेशन पूरी एग्जिस्ट करती थी, उसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हुआ करता था। नाउ दैट इज बेसिकली द डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क दैट वर्क्स इन दिस वे। तो ये बेसिकली फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की तरफ हमें चीजें लेके जा रही हैं, जो कि हमें वेरेसाइडे की तरफ लेके जाती हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है। काफी लोग इसमें ना डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं कि fifth generation warfare is something different and hybrid warfare is something different. I don't think there are many larger differences between two. कोई टेक्निकल अगर हो वो भी फिर जब आप कोई मिलिट्री साइंसेस में डिग्री कर रहे हो तब आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक बेसिक CSS की तैयारी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक यू शुड बी गोइंग इनटू द minute differences as to what is the, let's say, difference at the operational, strategic and tactical level. आपको बस इतना पता होना चाहिए। अब इस पूरी डिबेट से हम फिर एक अपने टॉपिक में इवॉल्व होते हैं, दैट इज द हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर इस डिस्कशन से हमें मालूम होता है वी विल एस्टैब्लिश मल्टीपल डेफिनेशंस। आपको ये पता होनी चाहिए कि पेपर में जो एक से ज्यादा डेफिनेशंस लिखते हैं उनको एक वैसे कि स्ट्रेटेजिक, अब हम वॉर के वोकैबुलरी अगर हम इस्तेमाल करें, एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट हो जाता है कि यार दे नो समथिंग दैट अदर कैंडिडेट्स एक्चुअली लैक, कि ये वो बात जानते हैं जो कि आम कैंडिडेट्स की बस की बात नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे मस्ट बी मार्क्ड इन अ बेटर मैनर. So hybrid warfare in this sense of the term is a military strategy that और ये implies a क्या blend of direct operations and subversive efforts to destabilize an adversary. It may also be defined as a non-linear or non-traditional warfare. समझ आ गई यहाँ तक कि भाई इसमें यूज ऑफ फोर्स भी होता है, सॉफ्ट पावर भी होता है, यूज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स भी होता है, रेगुलर मिलिट्री फोर्सेस भी होता है, यूज ऑफ पॉलिटिकल अपैरेटस भी होता है, तो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड मूवमेंट्स का भी होता है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड प्रोपेगेंडा भी होता है, तो साइबर स्ट्राइक्स का भी होता है. सो दिस ऑल थिंग्स वर्क इन अ सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रेटेजिक नैरेटिव. नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखें तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर या एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, इसको हम एक ही चीज करके इक्वेट करेंगे कि ये वो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है जिसके थ्रू एनिमी यूजेस ऑल मींस कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल पॉसिबल एट इट्स डिस्कोर्स. इट इंक्लूड्स, जैसे हमने थोड़ी सी पहले फिगर में भी देखा, पॉलिटिकल,
religious, social, all those causes, and then incorporates information operations campaigns over internet. आपको Twitter trends नजर आएंगे, आपको आज Twitter wars नजर आएंगी. Social media has become a new front of war to shape a narrative in a particular paradigm, and this can be conducted by organization or unorganized group. ये बहुत ही important है कि पहले ढूंढना होता था कि जी अलकायदा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, चलें उसके ऊपर हमला करते हैं. लेकिन अब ये कि enemy is within us. We don't know who is the enemy, and we are under a constant threat for 24 hours and 7 days. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे फिर इस नैरेटिव को जो है वो इस मैनर में शेप कर रही हैं, that we need to take into the account in all possible manner. So that can be a nation state, that can be non-nation state, that may lead to disrupt and defeat opponents in order to achieve their will, whatsoever they are going to desire or going to will. एक और इसकी हम डेफिनेशन एस्टैब्लिश करें तो फिर ये भी बन जाती है कि जी हाइब्रिड थ्रेट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन विच स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्सप्लॉइट ऑल मोड्स, conventional, irregular, terrorist, disruptive, or criminal to destabilize an existing order. A hybrid threat is also defined as a diverse and dynamic combination of the regular force, irregular forces, and or criminal element all unified to achieve mutually benefiting effects. So convergence of the physical, अब ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ मैं जा रहा हूँ हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट के ऊपर. अभी इसकी मल्टीपल डिबेट्स और एग्जिस्ट करती हैं, वी विल टॉक अबाउट देम. So the convergence of the physical and psychological, combatant and non-combatant, violence and nation building, and kinetic and information approach. These are all the tools that are used in this particular warfare. Final definition फिर आप ये रख लेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर मालूम ये होता है कि दैट्स अ रिलेटिवली न्यू टर्म, लेकिन हकीकत ये है कि दैट इज बेसिकली ए कैच ऑल फ्रेज टू डिस्क्राइब एनी सॉर्ट ऑफ क्लैंडस्टाइन, नॉन मिलिट्री और डीस्टेबलाइजिंग एफर्ट. और अगर हम इसे इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर या क्लाउज़विट्ज़ के आइडियाज ऑफ ऑन वॉर या पाकिस्तान की बाजवा डॉक्ट्राइन में मैनिफेस्ट किया हुआ थ्रेट हमें बता रहा है कि हाइब्रिड वॉरफेयर एग्जिस्टेड इन मल्टीपल फॉर्म्स एंड हैज इवॉल्व्ड इन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम because of the changing nature of technology, force, adversary, participants, and the overall characteristics of the warfare. अब हम इसके डिस्कोर्स को देखेंगे. मैं ये इन टॉपिक्स में थोड़ी सी एक नई अप्रोच मुझे ख्याल आ गया. अब मेरे ख्याल से आप लोगों की इतनी अप्रोच है कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें ना पढ़ाई जाए, आपको डिस्कोर्स के ऊपर भी फोकस कराया जाए, क्योंकि डिस्कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि एक चीज वैसे बताऊंगा कि फैक्ट्स चेंज होते हैं लेकिन डिस्कोर्स वही का वही रहता है. तो आपको डिस्कोर्स पता होना चाहिए. डिस्कोर्स ये कि आपको ना उस चीज के बारे में थ्योरीज पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम टेररिज्म पढ़ेंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना थ्योरेटिकल पढ़ाया जाए. ये बस इनफ हो गया कि जी फला ऑर्गेनाइजेशन है, फला ने अटैक किया. We need to read between the lines as to what is an attack, why that attack is directed towards a particular community. अब ये 3 लेयर्स है ना, जैसे हमने सेशन शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम फैक्चुअल लेयर से शुरू करेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव लेवल, फिर एनालिटिकल लेयर. अब हम थ्योरेटिकल लेयर के ऊपर जा रहे हैं ताकि ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए आपके ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में. और ये वो बातें हैं जो कि आपको दीगर कैंडिडेट से अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंशिएट करती हैं. आप अगर पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं तो आपकी निशानदेही इस बात से होती है कि इन व्हाट डिफरेंट मैनर यू आर प्रपोजिंग योर आर्गुमेंट. मैं इंटरव्यू की तैयारी करा रहा था बॉयज को, तो मतलब जो CSS 2020 क्वालिफाई कर गया उनको और PMS के लोगों को, तो मैंने देखा कि सब लोगों के आर्गुमेंट्स मोर और लेस एक ही. तो ये आपने थोड़ा सा ना देख लेना है कि इवन इफ योर टर्न कम्स आफ्टर 5 पीपल, what new thing you are going to, let's say, promise. आप नई चीज ऐसी क्या बयान कर रहे हैं that may differentiate you from other candidates. वो आर्ट आपने ना इस चीज से सीख लेना है. So first of all, we have a strategic interaction theory. We will also look into that, the discourses, और बड़े इंटरेस्टिंग है वो. This explains the symmetric conflict and posits the tactics of a weaker party uses in order to win a war. इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, the strength of the weak.
गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। सो फिर होता क्या है कि इसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज दोनों इस्तेमाल होती हैं। सो दैट हैज बीन गॉट द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक, जिसमें लेट्स से जो कमजोर लोग हैं वो फिर डोमिनेट कर जाते हैं बिगर पावर्स को। नाउ दैट कैन बी एविडेंट, फॉर एग्जांपल लेट्स से वियतनाम वॉर में, अफगान वॉर में, या इवन जो मौजूदा हालात में अफगान तालिबान हैज बीन डूइंग अगेंस्ट अमेरिकन्स। So the strong actor used the barbarism in order to change the will of the adversary. जैसे फॉर एग्जांपल वियतनाम वॉर में आपको पता है कि 47,000 क्लस्टर बम्स जो है वो जो वो दागे गए इसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर, in order to ban the will of the people, but the America failed. The ultimate aim is to eliminate the capacity via corrosion and the pain infliction. Second case in point is, for example, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने मदर ऑफ ऑल वेपन्स का जो मदर ऑफ ऑल वेपन्स मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, एक बॉम्ब जो रिसेंटली अमेरिका ने बिगेस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन बनाया है, वो इसके अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। On the other hand, the weaker actor uses guerrilla warfare such strategies, जिनको अर्थशास्त्र में कोटले ने कहा है कि concealed warfare। सेकेंड डिस्कोर्स इसके ऊपर हमें मिलता है कोतलिया का। अर्थशास्त्र में उसे कहा गया है कि अनडिक्लेयर्ड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, कि आप बताओ ना दुश्मन को कि अब हम आपके ऊपर जंग करेंगे, आप एक कांस्टेंट वॉरफेयर में रहो और तब तक उस वॉरफेयर में रहो जब तक आप दुश्मन को सही तौर पर नस्तो नाबूद नहीं कर लेते। अब हम हाइब्रिड वॉरफेयर को हिस्टोरिकली अगर देखें तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हाइब्रिड वॉरफेयर कोई आज की पैदावार नहीं है। ऐसी जंगें यानी कि जिसमें मल्टीपल टूल्स हैं जो जंगों के वो एम्प्लॉय किए जाएं, वो होते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि काफी सारे मौके हमें मिलते हैं जहां पे वीकर एडवर्सरी ने इन तमाम तर असिमेट्रिक स्ट्रेंथ की जो टैक्टिक्स हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए अपने से कई गुना ज्यादा अपोनेंट से उसे जो है वो शिकस्त दे दी है। उसकी मिसालें हमें मिलती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर वन के दौरान लॉरेंस ऑफ अरेबिया है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया क्या था? एक इंडिविजुअल था। ये मूवी भी है वैसे, बाय द वे, आप अगर लोग देखना चाहें तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरबों की जो बगावत थी वो यूके जैसे छोटे मुल्क ने और लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे एक MI6 के इंडिविजुअल ने कैसे जो है वो भड़काई कि हरमैन शरीफैन के जो पासदार थे वो सारे खड़े हो गए कि नहीं, हमने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ना है। चंगेज खान की कामयाबी का सबसे बड़ा एलिमेंट ये वॉरफेयर थी। अफगान वॉर्स हैं वो हमें बताती हैं कि कैसे देयर हैड बीन सक्सेस। उसके बाद मिसालें ले तो हमें वियतनाम वॉर 1964 to 68, ये भी इसकी क्लासिक मिसाल है। People's Army of Vietnam combined irregular and regular forces into conventional and unconventional units in fighting the French and US forces, despite the fact that some 47,000 cluster bombs were used against the Vietnamese people. फिर 1979 में हम देखें तो रशियन एक्सपीरियंस इन अफगानिस्तान वॉर that also bears the testimony to the efficient use of irregulars in both urban and rural environment to bring to its knees the might of an erstwhile superpower that was popularly known as the Union of Soviet Socialist Republic, or simply called as Soviet Union. So Soviet Union had also to withdraw from that particular territory and eventually end up in, let's say, dividing into 13 states as a whole. उसके बाद रशिया की जो मुख्तलिफ जंगें हैं, जैसे जॉर्जिया में, जैसे यूक्रेन में, जैसे कलर रेवोल्यूशंस हैं, these all have been the manifestations of the hybrid warfare. इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ईरान and Saudi Arabia are, let's say, engaged into hybrid warfare, in which we witness that Hezbollah uses multiple conventional capabilities, for example, anti-armor weapons, rockets, and command and control networks, and at the same time irregular tactics like information warfare, non-uniform combatants, and the civilian shielding that actually results into what we call as the tactical stalemate and a strategic setback for a state of Israel, no matter how powerful the state of Israel is. Case in point is 2006 war.
between Israel and the Hezbollah, in which Israel was potentially defeated against the very minute forces of two or three legs that consist of the Hezbollah forces. उसके बाद एक और डिस्कोर्स ये है एक अर्थशास्त्र, ये भी आप जरा नोट कर लें कि इसमें भी इस वॉर की तरफ जो है वो वैसे लिखा गया है कि दैट्स अ साइलेंट वॉर, दैट्स अ कंसील्ड वॉर, और ये इस्तेमाल होती थी बाय लेट्स से यूज ऑफ असैसिन्स, insiders, informers, even prostitutes that aimed at winning the battles against an adversarial king. और उसमें जिन लोगों ने जंग को ज्यादातर इस्तेमाल किया, दैट शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह, Maharaja Ranjit Singh, even Hari Singh, they all used hybrid resources to achieve their political and military aims. अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बहस को हम लेमेटाइज करें तो in 1971 India used this particular campaign against Pakistan. For example, on one hand, they supported Mukti Bani movement, that was an armed organization that comprised both regular and irregular forces. Regular कौन थे? The people who were defectors from East Pakistani units from Pakistan's army, and those were employed by India and Bangladesh and had greatly assisted in achieving its political and military aims. साथ ही इंडिया ने ये कर लिया कि व्हाट इफ चाइना अटैक्स इंडिया इन द फेस ऑफ इट्स वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लिया। थर्ड, उन्होंने ये कर लिया कि कश्मीर में अपने स्ट्रेटेजिक नैरेटिव को रीशेप करना शुरू कर लिया ताकि पाकिस्तान की जो टेंशन है वो डेविएट कराई जाए। फोर्थ, उन्होंने ये किया कि लेट्स से शेख मुजीबुर रहमान के साथ मीटिंग्स शुरू कर ली। द फेमस केस ऑफ अगरतला कंस्पायरेसी केस इज वन केस इन पॉइंट। तो ये सारी चीजें इंडिया ने उस एक खास सिंक्रोनाइज स्ट्रेटेजिक स्क्रिप्ट के तहत की और आखिर में खुद इंटरवीन किया अंडर द गार्ब ऑफ लेट्स से ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन लेट्स से दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ। So why do states resort to hybrid warfare? That's also, let's say, $1,000,000 question. कि रियासतों को जरूरत ही क्यों पड़ती है कि वो हाइब्रिड वॉरफेयर जैसी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनकी तरफ जाएं? In my humble understanding, there are various reasons why states actually resort to hybrid warfare strategies. States have to, no matter how powerful states they are. For example, हमने देखा कि Soviet Union, that was a mighty empire. America, that's a mighty empire of her times. But all have to engage into a hybrid warfare strategy. For example, India is 3 times bigger than the state of Pakistan and all its resources, geographical size, and the military and economic potential. तो क्यों जरूरत पड़ती है हाइब्रिड वॉरफेयर की इन सबको? There are multiple factors as to why do states resort to hybrid warfare strategies. Number one is nuclear weapons have raised the cost of war. रियासतें चाहती तो हैं कि डायरेक्टली कोई जंग करें, कैपेसिटी भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन डर ये होता है कि अल्टीमेट जो वॉर है दैट वुड एस्केलेट इनटू अ न्यूक्लियर फ्रंट. So if war goes into that nuclear and that let's say ladder, it would be very much costly. लिहाजा altogether the idea of war is let's say abundant कि नहीं बस अब जंग नहीं होनी चाहिए, we must stand down. So nuclear weapons have basically raised the cost of war, and that's why states are using the strategies of hybrid warfare. Second, for example, हम अच्छा इसकी मिसाल हम एक और कर लेते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका की जंग जो है वो क्या है? अमेरिका को पता है कि डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया को मिलिटरीली इन्वेड करना that will not be a good strategy. Instead, we must use hybrid strategies to counter the threat posed by the let's say North Korea. Second is the evolution of international norms like international law and UN Charter. अब इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इन बातों के ऊपर कि भाई एक रियासत को दूसरी रियासत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो वायलेट नहीं करनी चाहिए, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, देयर मस्ट बी रिस्पेक्ट फॉर लेट्स से द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर दैट इंक्लूड्स diplomatic means of resolution of all those conflicts. अब इतने सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं तो रियासतें डरती हैं तो उन्हें कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये लेबल ना लग जाए कि दे आर एग्रेसिव. फॉर एग्जांपल इवन पुलवामा क्राइसिस की अगर हम बात करें
तो इंडिया का नैरेटिव ये था कि इंडिया वेंट ऑन प्रीएम्प्टिव डिफेंस स्ट्राइक्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रीएम्प्टिव अग्रेसिव स्ट्राइक्स, हालांकि प्रीएम्प्टिव होती ही अग्रेसिव है except in the certain circumstances। तो ये बेसिकली नैरेटिव जनरेट होता है कि नहीं, दिस इज द अग्रेसर एंड दैट इज बेसिकली एन अनलॉफुल एंड अनजस्टिफाइड एक्ट एंड दैट बेसिकली लीड्स टू बैशिंग इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस वजह से फिर रियासतें कहती है नहीं बस अब फिर हाइब्रिड वॉरफेयर ही परस्यू करनी चाहिए। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन डजंट फेवर इंटर स्टेट वॉरफेयर। इवन देखें कि आर्मीनिया और अजरबैजान का एक लोकलाइज कन्फ्लिक्ट है, दोनों के पास ना ही उस तरह के वेपन्स हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उससे थ्रेटेंड हो, ना ही दोनों में कोई इस तरह के जो है वो आप कह लें कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कोई एक्सेस है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। लेकिन दैन इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन डजंट लाइक दैट पर्टिकुलर आइडिया कि भाई दो रियासतें या दो से ज्यादा रियासतें जंग की तरफ जाएं। देन स्ट्रेंथ ऑफ द वीक, ये गोरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स है। ये फिर बता रहा है कि जी देखें बड़ी बड़ी रियासतों के खिलाफ हम कैसे लड़ें। अब देखें अमेरिका ने इन्वेड तो कर लिया है स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को, अब कैसे अफगानिस्तान के जो लोग हैं या अफगान तालिबान के जो लोग हैं वो लड़ें। सो दैट इज द आइडिया ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर दैट कैन ओनली हेल्प देम इन ऑल द वेज। फिर कुछ और रीजंस हैं, ठीक है। देयर इज अ शिफ्ट इन पोलैरिटी फ्रॉम यूनिपोलर टू ग्रेजुअली मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसके लिए भी रियासतों को अब लग रहा है कि दी हाइब्रिड वॉरफेयर इज अ बेटर स्ट्रेटजी, क्योंकि एक पावर सेंटर है नहीं दैट इज गोइंग टू शेप द रूल्स ऑफ द गेम। मल्टीपल पावर सेंटर्स एंड मल्टीपल स्ट्रेटजीज coupled with multiple interest eventually lead to the idea of hybrid warfare. And then there are resultant changes in the geopolitical trajectory, both internationally and regionally. So the states no longer try to be directly superpower. Instead, they have the regional ambitions. And the regional geopolitical changes demand that direct military confrontation could risk the lives and limbs of people and the loss in economy as well. So the best possible ways to wage hybrid warfare. And then there is an emergence of the great power contestation, the recalibration of the balance of power and arrangement with emphasis on issues based on partnership instead of traditional alliances. These all the things have been pushing the states to actually go to, let's say, the idea of what we call hybrid warfare. Last but not least, the colliding waves of globalization versus populism instigate the fact that hybrid warfare is the modern day reality. 5 स्टेजेस हैं किसी भी मुल्क के खिलाफ अगर जंग लड़ी जाए। पहली स्टेज में होता ये कि स्ट्रेटेजिक नैरेटिव को रीसेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रीसेटिंग स्ट्रेटेजिक नैरेटिव ऑफ द कंट्री, in which societal and structural remapping of a country is undertaken by manipulation of socio-political vulnerabilities, that is, ethnic, religious, socio-economic disparities, human rights and governance issues. अब इसके लिए मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, हज़ारा जो माइन वर्कर्स थे उनके ऊपर अटैक हुआ, तो अब वहां से एक बड़ा नैरेटिव जनरेट होना शुरू हो गया कि जो हज़ारा हैं वो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो शिया हैं, और पाकिस्तान में जो शिया लोग हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके कोई राइट्स नहीं है। फिर फॉर एग्जांपल जैसे जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लेट्स से क्लैशेस हुए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो ये वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें एक चार्ज्ड पॉलिटिकल या एथनिक या रिलीजियस एनवायरनमेंट होता है, जिसमें फिर सर्टेन केसेस को हाईलाइट करके पूरी कौम को एक हॉस्टेज बनाया जाता है, और वहां से फिर हाइब्रिड वॉरफेयर का जो एवोल्यूशन है वो फिर शुरू होती है। दैट ट्रांसेंड्स इनटू द सेकंड स्टेज कि अब फोकस होता है कि अब इतने सारे क्राइसिस डेवलप हो गए हैं, नाउ देयर मस्ट बी फोकस ऑन लेट्स से weakening of the state structure. That simply means inducing insurgencies, terrorism, cyber threats in synchronization with the hostile actors. क्राइसिस बेसिकली है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, लेकिन अब इन क्राइसिस के साथ साथ अब चूंकि स्टेट मशीनरी का ज्यादा फोकस इन क्राइसिस को एवर्ट करने के पीछे है, तो ऐसी सूरत हाल में फोकस ये होगा कि कहीं ना कहीं और टेररिस्ट अटैक भी हो जाए, ताकि कि स्टेट की जो कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड इन दो सर्टेन केसेस हैं वो डिमिनिश की जाए, वो लिमिटाइज की जाए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू एक्चुअली हेल्प द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री वेजिंग अ हाइब्रिड वॉरफेयर।
And then there is a third stage, whereas the cohesion of the state may be broken by targeting the holy trinity, कौन सी? Government, armed forces and the people. This is exactly what happened in the Syrian civil war. कि पहली दो स्टेजेस जैसे ही पूरी होती हैं, तीसरा ये होता है कि डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया जाए अवाम और पब्लिक में, और अवाम का अपने जो फौज है उनके साथ. So the lack of public confidence in the state and the state institutions, including the military, is the hallmark of this particular state. And then you have the narrative that's a reactionary narrative directed against both the state and the armed forces, which are basically part of the state. उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ स्टेजेस आती हैं. फोर्थ स्टेज में ये होता है कि तमाम तर एलिमेंट्स जो कि अभी तक डेवलप किए गए थे, दे आर सिंक्रोनाइज्ड अंडर वन स्ट्रेटेजिक स्क्रिप्ट, और मकसद ये होता है कि कोर्स स्टेट ऑन कोर इश्यूज एंड दिस टाइम ओवर्टली. पहले क्या था, कोवर्टली एक स्टेट को बैश किया जा रहा था. नाउ इज द टाइम दैट थिंग्स विल गो एक्सप्लिसिट. फिफ्थ स्टेज दैट इज द काइनेटिसिज्म. अब पहले नॉन काइनेटिक एक्टिविटीज थी, अब ये कि एक रियासत क्या करेगी, अपनी फौजें दूसरी रियासत के ऊपर चढ़ा देगी थ्रू एन इंजीनियर्ड ट्रिगरिंग इवेंट. जैसे हमने इंडिया के केस में देखा कि पुलवामा क्राइसिस वो कराएंगे भी खुद, लेकिन उस इवेंट को इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू inflame internal and external hostile elements into physical actions such as the occupation of the important installations, civil disobedience, and resulting into internal collapse which may be exploited by the external conventional forces. और पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में यही बेसिकली एक रेड लाइन भी है कि अगर ऐसा इंडिया ने किया तो that would be the cost, and there will be consequences beyond proportions that India even cannot imagine in any form. तो ये स्टेजेस हैं. अब आ जाते हैं सिंपल कि जी पाकिस्तान में क्या ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं जिसकी वजह से हाइब्रिड वॉरफेयर आ जाती है. देयर इज अ कंट्री वाइड विल एंड कोहेजन हमारे मुल्क में नहीं है. नॉन कोहेसिव फोर्सेस आर अ लिटिल पावरफुल. वी हैव द पोलराइज्ड सोसाइटी दैट एसेंशियली गिव्स द स्पेस टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस इन मेनी वेज पॉसिबल. फिर हमारे मुल्क में एक और बड़ा मसला है कि डिक्लाइनिंग इकोनॉमी एंड इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मैसेस. लोग बड़े तंग हैं, और जब भी कोई क्राइसिस मुल्क में होता है जिसमें पब्लिक रियासत के खिलाफ और उनके इदारों के खिलाफ कोई लेट्स से एंगर वोमिट आउट करती है, तो ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ज्वाइन. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम देखें कि एक टीएलपी के जितने प्रोटेस्ट हुए तो जनरली वकला को दे हैव नथिंग टू डू, लेकिन द लॉयर फ्रेटर्निटी हैज सर्टेन ग्रीवेंसेस. इवन द स्टूडेंट्स हैव सर्टेन ग्रीवेंसेस on part of the government, so they also tend to join that very movement, and that gives hybrid warfare strategy a larger discourse. फिर overly personalized political discourse कि मुल्क में एक ही सेवियर है और उसके अलावा कोई चल ही नहीं सकता, तो अगर उसके ऊपर हमला होगा तो फिर who would save the country? Then we have radicalization and subnationalism that have been reshaping Pakistan, reshaping and putting Pakistan into crisis and the unforced situations to the unimagined level. Then religious, social, economic, ethnic divide that is deteriorating human security situation. मुझे उम्मीद है कि ये आर्गुमेंट्स आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जिस तरह की हमने एक्सटेंसिव डिबेट्स एंड आइडियाज के बारे में की हैं. So this would particularly be helpful for you people. Then a balance, the absence of a well-defined national security management system. That's also a bigger challenge, and that has been reshaping national security fabric. अब आ जाते हैं कि टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है. देखें, सबसे पहले ये कि स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन के ऊपर बड़ा फोकस है कि पाकिस्तान सर्वाइव ही तभी कर सकता है जब पाकिस्तान की इकॉनमी एक स्टेबल कंडीशन में होगी. तो ये पुरजोर कोशिश है जो डिविजिव फोर्सेस हैं उनकी कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसे सस्टेनेबल कंडीशन में नहीं छोड़ा जाए. दैट वुड बी इन द फेवर ऑफ द लेट्स से दोज पर्टिकुलर कंट्रीज. तो उसके लिए हमने देखा है कि इंडिया ने $400 मिलियन का एक रॉ में सेल भी बनाया है दैट एम्स टू लेट्स से वीकेन पाकिस्तान इकॉनमी. सेकंड इज इसमें हम एनालिसिस में ये बात कर लें कि मेक नो मिस्टेक, जैसे अमेरिकन हमें पाकिस्तानियों को कह रहे हैं जब उन्होंने IMF के कर्जे दिए, मेक नो मिस्टेक, वी वुड बी वाचिंग व्हाट IMF डज, वी वुड बी वाचिंग
if there is no rationale for IMF tax dollar and associated with that American dollars that are part of the IMF funding for those to go to bail out Chinese bondholders for China itself. ये जो चीजें हैं ये फिर हमें रिफ्लेक्ट कराती हैं कि how economic warfare is part of hybrid warfare waged against Pakistan. Then there is a use of non-state actors like Tehreek-e-Taliban Pakistan that shares anti-US agenda as well as sectarian agenda to operate within Pakistan. ये बनी थी 2004-2006 में, but operates till today and has let's say broader support by the forces who are hostile to Pakistan. एक और force है, let's say Daesh, that's also working day in and day out to weaken the state of Pakistan, malign state institutions, and achieve its nasty, nefarious designs. अब ये बेसिकली जो बनी थी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा की का ही एक ऑफ शूट था, जिसको हम कभी फिर डिटेल में देख लेंगे, लेकिन ये एक अलकायदा का एक ऑफ शूट था। 2006 में उन्होंने जो है ये मूवमेंट शुरू कर ली और इसका नाम उन्होंने रख लिया कि जमात उल तौहीद वल जिहाद। और 2003 में जैसे यूएस ने इराक में इन्वेड किया और पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो इसने ऑपरेट करना शुरू कर लिया। Now Daesh is also having closer ties where let's say with certain factions in Pakistan and Balochistan. Non-state actors related to sectarian organizations, सुन्नी शिया फसादात हों जैसे सिपाही साहबा पाकिस्तान है या जैसे दीगर ऑर्गेनाइजेशन है जैशुल आदल है, इस तरह की। नेक्स्ट है कि डिप्लोमेटिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे मुख्तलिफ ममालिक की कोशिश है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू किया जाए और उसका एक नैरेटिव जनरेट किया जाए कि पाकिस्तान इज बेसिकली hub of terrorism, Pakistan is standing isolated, Pakistan is supporting insurgencies in other countries, Pakistan is state sponsor of terrorism. तो इस तरह के जो नैरेटिव्स हैं ये जनरेट करने की कोशिश की जाती है ताकि डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए पाकिस्तान को। फिर एक और कोशिश ये की जाती है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इन्फिल्ट्रेशन की जाए और इसके 4 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। फॉर एग्जांपल पहली कोशिश ये होती है कि इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, जैसा आपने रिसेंटली देखा होगा कि रिसेंट तो नहीं कुछ टाइम की बात है, वो क्या नाम है कि जो कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनको दे वर हैंग्ड टू डेथ बिकॉज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। देन द सेकंड लेयर इज स्प्रेडिंग र्यूमर्स, देन let's say corruption, and then talent spots to have their agents in the major organizations ताकि दूसरे मुल्क की जो एक्टिविटीज हैं उनसे बाखबर रहें। दैट्स पार्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर डिप्लोमेटिक मेजर्स टू आइसोलेट आवर कोर्स पाकिस्तान, ये इसके ऊपर बात हो गई। एक और है मींस डिस्गाइज्ड एनजीओज थ्रेटनिंग स्टेट सिक्योरिटी, ये भी एक टूल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, सेविंग द चिल्ड्रन एक एनजीओ थी। अब ये वो एनजीओ थी जो कि पाकिस्तान में काम कर रही थी कि हम बच्चों को पोलियो के कतरे जो है वो पिलाएंगे, लेकिन आपको पता है कि जो उसामा बिन लादेन है जब उसके वो पकड़ा गया पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो यूएस फोर्सेस थी उन्होंने अटैक किया, तो एक डॉक्टर था, डॉक्टर शकील आफरीदी, वो सेविंग द चिल्ड्रन में काम करता था। काम ये था कि उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाने, लेकिन एबटाबाद कंपाउंड में उन्होंने हर बच्चे के ब्लड के सैंपल्स लिए, वो सैंपल सीआई के साथ शेयर किए। जब वो मैच हो गए तो उसके बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वेल उसामा बिन लादेन इज हियर। तो जो लास्ट गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन हुआ, फिर अमेरिका ने बड़ा रोला मचाया। इकोनॉमिक मीन्स अभी आपको समझ आ गई होगी कि यूज ऑफ ब्रैटन वुड इंस्टीट्यूशंस टू कोर्स पाकिस्तान, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन हो या कर्जे जल्दी वापस करो, इस तरह के नैरेटिव। सोशली इंजीनियर्ड प्रोटेस्ट, ये वैसे मुल्क में है कि अचानक ये जो मूवमेंट्स हैं वो ऐसा नैरेटिव जनरेट करती हैं जो कि एंटी पाकिस्तान फोर्सेस जो है वो करती हैं। जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये जब हाइब्रिड वॉरफेयर के ओरिजिन्स थे तब जो है इस मूवमेंट को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि दैट एंजॉयज लेट्स से सपोर्ट ऑफ अफगानिस्तान और लेट्स इंडिया व्हाटएवर। हम इसके जो है वो निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन दैट वाज एक्चुअली द डिस्कोर्स एंड इट वाज प्लान।
सोशल मीडिया इसकी मैनिपुलेशन है, आपको हर तरह का नैरेटिव नजर आएगा इन ऑर्डर टू वीकन दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड सोसाइटी टू द कोर। एथनिक एंड सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस को जो है वो एक्सप्लोर किया जाता है, और उसकी मिसाल हमें फॉर एग्जांपल मिलती है कि कैसे जो उलमा हैं उनके ऊपर अटैक्स कराए जाते हैं ताकि उस मुल्क में मजहबी फसादात जन्म लें। फिर जो है वो एक और काम ये भी हो जाता है कि भाई किस तरीके से एक मुल्क में वायलेंस को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ जो पॉकेट्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाए इफ एंड व्हेन नीडेड इन सर्टेन टाइम्स एंड कंडीशंस। तो ये कुछ चीजें हैं। सो एथनिक एंड इसकी एनालिसिस मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि एथनिक एंड सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स और द क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी विद इन अ कंट्री जो कि हाइब्रिड वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज को ज्यादा इंटेंसिफाई करती हैं। इंडियंस ब्लेम करते हैं कि जो लेट्स से दिल्ली रायोट्स हुए हैं या जो सिखों की जो है वो मूवमेंट थी अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, दैट वाज ड्रिवन बाय पाकिस्तान, दैट वाज नॉट द केस। लेकिन पाकिस्तान में जो ज्यादातर ये जो सेक्टेरियन फ्रंट लाइन्स हैं गिलगित में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, वो सारी की सारी इंडिया की हैं। that goes without saying. So these conflicts have their roots deeply attached to the grievances of the unsatisfied groups. The grievances may be materialistic or cognitive, and cognition can be molded in order to intensify the conflict that may weaken the state. वे फॉरवर्ड क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से अब इस डिस्कशन के बारे में काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि ये टॉपिक आपको अगर सिंप्लीफाई करके पढ़ाया जाए ना तो इसके ऊपर कोई ब्रॉडर डिबेट है ही नहीं, फर्स्ट कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर इसको हम सीरियस मैनर में करें ना तो एवरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। आपको डिस्कोर्स पता चल गया, आप कभी फेल नहीं होंगे। हम अक्सर कहते हैं यार आपके आइडियाज बड़े वीक हैं, तो आइडियाज कैसे इंप्रूव होंगे? जब उनके ऊपर एक ब्रॉडर डिस्कोर्स जनरेट होगा, डिस्कशन जो है वो जनरेट होगा। अदरवाइज फिर फेल्यूर इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज नॉट जस्ट योर डेस्टिनी, इट इज आल्सो योर चॉइस। पाकिस्तान, PAK, पाकिस्तान इन तीन अल्फाज के ऊपर है। तो लेट्स से P stands for prevent, that is to prevent hostile actors from manipulating their relatively deprived section of the society. उसके लिए हमें सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करनी होगी। A stands for averting fissions within the state and people. जैसे हमने कहा कि 3 होली ट्रिनिटीज हैं, एक होली ट्रिनिटी है, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, पीपल, स्टेट एंड द आर्म फोर्सेस। उनको ये जो उनके अंदर जो फिशर्स हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। reassurances at all levels including National Security Committee by undertaking all possible economic, administrative, educational, intellectual and defensive measures against a strategic imbalance or a strategic origin. K stands for kinetic response to any external misadventure, as was Pakistan's response in the context of, let's say, attacks that were carried out on the state of Pakistan in this whole backdrop. So we continue to feel and experience the gray hybrid threats, but we also continue to respond with conviction and innovation. Such dirty tactics will not deter Pakistan from pursuing its rightful destiny with honor and grace in synchronization with our friends and partners. उसके बाद हमें कुछ और चीजें हैं जिन्हें कैपिटलाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड द रेलेवेंस फॉर द रीजनल एंड ग्लोबल एजेंडाज, वी आर वेरी मच रेलेवेंट, वी नीड टू कैपिटलाइज दैट, वी नीड टू अवेकन सिविल सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इतने पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, CSS की तैयारी कर रहे हैं, आपको ही नहीं पता हाइब्रिड वॉरफेयर की जो है वो डिस्कोर्स क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करे। सो हाउ कैन यू जस्ट एक्सपेक्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन to have a deeper insight and understanding of that particular topic? You can't actually. You need to inform people, you need to have informed public, because only in हमारे मुल्क में लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने 14 अगस्त को छुट्टी क्यों की है, 23 मार्च को छुट्टी क्यों नहीं की है। आप ये YouTube पे सर्च करें, आप आज ये काम कर लें, ये देखें कि हम 5 फरवरी को क्यों छुट्टी करते हैं, आप देखें कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। आप खून के आंसू रोएंगे, आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि कैसे वो किस तरफ हम जा रहे हैं। हमें नेशनल कॉज का ही नहीं पता और हम कह रहे हैं कि हम नेशन है। ये फिर हुजूम बन जाते हैं, ये नेशन नहीं होते। नेशन आप जैसे लोगों ने बनना है और आप लोगों ने फिर दूसरों को बनाना है, ठीक है। An independent and assertive judiciary that's in need of our criminal justice system पूरा जबरदस्त हो ताकि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले।
then an essentially working democratic structure with optimism in its functionality. That's also important. Democratic stability honi chahiye. An elaborative security apparatus with credible conventional and unconventional weapons capabilities. ये भी important है कि हम conventional military domain में भी powerful हों और unconventional जो domain है उसमें भी effective हों. Then a well-developed infrastructure and industrious human resource. लोगों को jobs होंगी, people will feel included in the system, they would have no reason to take up arms against the state. और आप अगर मेजर्स डिवाइड करें तो आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी मस्ट अनवील अ मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, और उसके लिए पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, चाइना, रशिया ये भी इस तरह का जो है वो शेयर कर सकती हैं. द काबुल गवर्नमेंट, यूएस एंड नेटो एंड इंडिया कुड आल्सो बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस मैकेनिज्म. और हमने जैसे बात की थी कि एससीओ के तहत हमारा मकसद ही यही है कि हम बात करें तो वी नीड टू फाइट 3 chronic evils, namely terrorism, separatism and extremism. Then we need to make a case at the United Nations कि भाई हम अगर अपना इंटरनेशनल इमेज रीगेन करना चाहते हैं तो हमने यूएन में जाके ये केस जो है वो साबित करना होगा कि हाउ देयर आर टेररिस्ट हु आर सीकिंग रेफ्यूज इन अफगानिस्तान, और हमारे ऊपर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर सर्टेन बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर चीजें रीजन में अचीव कर सकें. क्लैरिटी ऑफ टर्मिनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. जैसे हमें काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में पता होने चाहिए कि इसका डिजाइनिंग मिशन क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स क्या है, मटेरियल और मीडियम क्या होना चाहिए, और वो तभी हो सकते हैं जब हम वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आइडेंटिफाई की थी. नेशनल कोहेजन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, डी रेडिकलाइजेशन ऑफ द मैसेज. आप देखेंगे कि जैसे मुल्क में ये जो है स्टार्ट हुआ था एक लबैक पाकिस्तान का मार्च, तो हाउ मच स्टेट एंड सोसाइटी वाज रेडिकलाइज्ड यू कुड सी. हम वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहे किसी चीज के ऊपर, हम प्योरली एक इकोनॉमिक एंगल से देख रहे हैं चीजों को. आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स. ठीक है, एथनो रिलीजियस हार्मनी के ऊपर काम करना होगा. वी हैव टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ जस्टिस एंड फॉर दैट वी नीड टू रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. We also need to project military engagements, how much powerful we are. That requires projecting influence of power, whether it is happening or not. इससे फिर प्रोजेक्शन का पता है क्या फायदा होता है, आपका जो दुश्मन है वो फिर समझ जाता है कि अच्छा जी आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है, आपके पास कितनी कैपेसिटी है, और जो है आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. और ये जो प्रोजेक्शन है इसको फिर हम मीडिया के थ्रू एक इफेक्टिव मैनर में प्रोपेगेट करें ताकि एक नेशनल कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो जाए. Then we can say that we need to execute aggressive conventional military operations, which can include asymmetric and non-asymmetric, etc. So that's where we reach our conclusion. I want to read it for you. You can take a screenshot on that. The 21st century contestation or conflicts mark the return of the Machiavelli or Kautilya approach to war, wherein the notion of the deep operation has underwent profound changes. Instead of frontline battlefields, the grey hybrid conflict is expected to be fought in the backyard of the political, economic, societal, information, and the cyber domain. Therefore, today we are witnessing the grey hybrid conflict being manifested through a combination of hard and soft power. It is manifested through such theories and creative chaos such as shock and awe, fire and fury and others. ठीक है, तो ये चीजें आपने ज़हन में रखनी.